कर दिया करो कि हमें वहां पे हम लोग देख सकें वापस से, अगर देखना हो तो। हाँ कर रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से 1-2 लेक्चर बचे हुए अभी, तो बाकी मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज अपलोड कर रहा हूँ। तो जो है उनको आई विल अपलोड इट टू द यूट्यूब। तो इसी के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, तो डोंट वरी अबाउट ओके। दैट। Okay, so what we understood is that if the nucleus is surrounded by the electrons, and due to the negative diamagnetic field, so this is negative diamagnetic shielding at the nucleus. Okay, so these electrons, so they are not allowing the full magnetic field, whatever applied magnetic field is there. Okay, so they are not allowing that whole of the magnetic field to reach to the nucleus. Okay, so in that sense, the nucleus is experiencing. Okay, so B effective is equal to B naught minus A. So the magnetic field of the electrons, so magnetic field due to the electrons. Okay, so it means depending upon the electronic environment, the nuclei, they are having different precessional frequencies. Okay, because the applied magnetic field, okay, so that is proportional to the precessional frequency. So the nuclei, they will have different precessional frequency. So that means the nuclei will absorb at different frequencies. Okay, so we are getting different kind of signals. Okay, so whenever there is excitation and the nuclei, okay, coming back to the ground state, so then there is a different type of signals we are getting. Okay, so that means the nuclei, so they absorb at different frequencies. Okay, but we discussed in detail that the exact frequency at which a nuclei is precessing, or we are getting that signal, the resonance frequency of the exact resonance frequency of the nucleus is not of that much importance. Okay, but we are okay if we know the relative frequency. If relative frequency at which a nucleus is coming into resonance, so generally we take TMS, tetramethylsilane, as a reference compound. Okay, and with respect to it, so we measure the frequencies. Okay, the frequency difference, the shift in there. So at with respect to TMS, okay, so at what frequency the nucleus is absorbing, उसके with respect कहाँ पे absorb कर रहा है. Okay, and that is measured as in terms of delta. We call it chemical shift. Okay, and actual chemical shift is of, so resonance frequency of the sample मान is resonance frequency, ठीक है, ऑफ द रेफरेंस, और जो हम टीएमएस की लेते हैं जिसको हम जनरली 0 लेते हैं, so resonance frequency of the TMS, so divided by, so this is resonance frequency, so resonance frequency of the instrument, okay, or the operating frequency, or we call it it's not resonance frequency, it's the operating frequency of the instrument. Okay, so new sample is the resonance frequency of the test compound, जो भी आपका टेस्ट कंपाउंड है. ठीक है, so this is new sample. Then new TMS is the frequency at which is the resonance frequency, so at which this TMS come into resonance. Okay, and this delta nu naught is the resonance frequency of the sorry, I'm saying, so this is the operating frequency of the instrument. Okay, or in other words we can say it is the frequency in megahertz. Okay, in megahertz, so these are frequency divided by frequency, but this frequency is in hertz, and this is divided by megahertz. Okay, so megahertz, so this will give you delta. The units of delta are ppm, so parts per million. Okay, so these are the units of
resonance frequency, yes, sorry, this chemical shift. So these are the units of chemical shift. So okay, so what we do, generally we measure the frequency at which TMS is absorbed. ठीक है, so we are taking TMS as reference. हम थोड़ा सा सैंपल में जब टेस्ट कंपाउंड करते हैं हम TMS की TMS थोड़ा सा अमाउंट में डालते हैं. जनरली जो हमारे NMR सॉल्वेंट्स होते हैं उसी में TMS डाला होता है. ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट देन व्हाट आर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और उसके विद रिस्पेक्ट कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे अब्सॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है, so that will give you idea about the resonance frequencies. Okay, so from here, so you know the delta this chemical shift values. So now so chemical shift value, okay, now what are the factors which affect chemical shift. ठीक है, तो उस दिन बताया मैंने आपको कि ये जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है इट वेरीज फ्रॉम डेल्टा इज इक्वल टू 0 टू, सो दिस इज फॉर टीएमएस जनरली जो रेफरेंस कंपाउंड है आपका. सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो अप टू 14. ठीक है, so this is the most common values. ठीक है, and so this region it correspond to, so whenever there is a shielding, ठीक है, तो जहां पर शील्डिंग आएगी तो शील्डिंग की वजह से जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और इधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है उस इलेक्ट्रॉन के अंदर, इट मींस कि जो नेट तो जो बी इफेक्टिव होगा तो बी इफेक्टिव विल बी लेस. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय दिस न्यूट्रॉन, सो दिस न्यूक्लियस, सो दैट विल बी लेस. ठीक है, अगर ये लेस है सो इट मींस इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विल बी लेस. लेस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी सो इट मींस दिस विल कम इनटू रेजोनेंस एट लो फ्रीक्वेंसीज. तो जो लो फ्रीक्वेंसीज है तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 के आसपास वो रेजोनेंस में आएगा. ठीक है, इट डजंट मींस कि 0 फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस में आ रहा है. ठीक है, सो इट मींस वो TMS, बिकॉज TMS इज हाईली shielded protons, we call them highly shielded protons. Shielded means, so this is tetramethyl selene. ठीक है, so selenium is electropositive. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो जो कार्बन है, सो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर ज्यादा होगी. अगर कार्बन के ऊपर ज्यादा होगी ये, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन के ऊपर ज्यादा जाएगी. ठीक है, जो प्लस आई इफेक्ट है तो प्रोटॉन, सो इट मींस कि प्रोटॉन्स दे आर हाईली शील्डेड इन टीएमएस. ठीक है, हाईली शील्डेड है, सो हाईली शील्डेड. ठीक है, सो दैट मींस द बी इफेक्टिव विल बी लेस. द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय दिस न्यूक्लियस इज लेस. जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना ही लेस ये इफेक्ट फील करेगा. ठीक है, सो दैट मींस उसकी जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होगी. अगर प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कम है इट मींस कि दो एक्साइटेड स्टेट्स है न्यूक्लियाई की, ठीक है, यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, दोनों में, तो अगर ये डिफरेंस कम होगा फिर, ठीक है, अगर कम, तो ये कम रहेगा. ठीक है, तो मींस लो फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस पे आएगा वो. ठीक है, और बाकी व्हाई वी यूज टीएमएस एज ए रेफरेंस. हम टीएमएस को ही एज ए रेफरेंस और कंपाउंड डाल सकते हैं, यस वी कैन ऐड, हम और भी कंपाउंड डाल सकते हैं, बट व्हाई वी यूज टीएमएस एज रेफरेंस. ठीक है, सो इट हैज नंबर ऑफ बेनिफिट्स. ठीक है, तो फर्स्ट इज इट कंटेन्स ऑल द, आपके पास जो कितने टोटल प्रोटॉन्स हैं, सो देयर आर 12 हाइड्रोजन, 12 प्रोटॉन्स है. ठीक है, सो दीज 12 प्रोटॉन्स, so all of them they are equivalent. So these are equivalent protons, so it means they come into resonance at the same frequency. ठीक है, और जो NMR है, NMR is a qualitative as well as quantitative. ये quantitative
क्वांटिटेटिव ही है। ठीक है, सो इट मीन्स क्वांटिटेटिव मीन्स कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो अगर एक हाइड्रोजन है उसके लिए कम सिग्नल आएगा, अगर दो हाइड्रोजन, एक तरह के दो हाइड्रोजन है उसके लिए ज्यादा आएगा, और तीन हाइड्रोजन है जो पीक्स है, ठीक है, तो एक के लिए कम आएगा। अगर दो हाइड्रोजन है तो उसकी पीक बड़ी होगी, और थ्री हाइड्रोजन है तो उसकी पीक और बड़ी होगी। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस एरिया अंडर द कर्व it will give you idea about the presence of number of hydrogens, कि कितनी हाइड्रोजन्स के लिए वो सिग्नल आ रहा है। ठीक है, सो इट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, सो दिस इज टॉलर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। सेकंड, इट इज वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल है, इट मींस इट इज इजी टू रिमूव। जब हमारा स्पेक्ट्रा हो गया, हमने स्पेक्ट्रा कर लिया अपना, ठीक है, स्पेक्ट्रा करने के बाद अगर हमने कंपाउंड कहीं और यूज करना है वो, ठीक है, अगर हमने कोई मास करना है, कोई और सैंपल करना है, ठीक है, या कुछ और एक्टिविटी करनी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करनी है, तो इट मींस जो भी हम ऐड कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी रिमूव। ठीक है, सो वोलेटाइल है, सो इट कैन बी, आप इसका वैक्यूम डिस्टिलेशन से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं टीएमएस को। ठीक है, और साथ में हाईली शील्डेड है। अगर हाईली शील्डेड है सो इट मींस आपका एक साइड में एक पीक, इसको आप रेफरेंस मान के, इसको जीरो मान के, उसके विद रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो बाकी पीक्स है वो पॉजिटिव आएंगे सारे के सारे। ठीक है, उसमें डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव आएगी मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेल्टा, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा इज पॉसिबल, बिकॉज इट इज ए रेफरेंस कंपाउंड। जिस जहां पर शील्डिंग ज्यादा होगी, अगर टीएमएस से ज्यादा शील्डिंग होगी, so definitely that proton will absorb at much lower delta values. Okay, so negative value of delta is also possible. ठीक है, now अब जो फैक्टर्स है, अगर हमने फैक्टर्स देखने की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे केमिकल शिफ्ट डिपेंड कर रही है। ठीक है, सो दो फैक्टर, ठीक है, वो आप अब इसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पे। ठीक है, जो आपकी जो शील्डिंग है और केमिकल शिफ्ट है और डायमैग्नेटिक शील्डिंग, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस प्रोटॉन के अराउंड, सो दैट न्यूक्लियर विल बी हाईली शील्डेड, उतना ज्यादा शील्डेड होगा वो, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर हम न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, इफ दिस इज अवर न्यूक्लियस, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द शील्डिंग। हम शील्डिंग कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी, वैल्यू डेल्टा वैल्यू उतनी कम आएगी। ठीक है, जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इफ मूविंग अवे द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं वहां पे, ठीक है, और प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो विथड्रॉइंग ग्रुप लग गए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, इट मींस सो दैट विल लीड टू डी शील्डिंग। अगर डी शील्डिंग होगी, डी शील्डिंग से क्या होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, so it means the nuclei will experience much effective field। जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मच वो ज्यादा फील्ड करेगा। ठीक है, तो इट मींस द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी हाई, ज्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, सो शील्डिंग के लिए लो वैल्यू होगी और डी शील्डिंग के लिए हाई डेल्टा वैल्यू आएगी। ठीक है, हाई डेल्टा वैल्यू। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब नाउ इफ यू आर अटैचिंग ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिविटी। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग CH3F, then you are having CH3 OH, then you are having CH3 let us suppose Cl. So here the electronegativity of fluorine is, fluorine की electronegativity 4 है,
ठीक है. Then the electronegativity of इसमें रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही है, ठीक है. अब तो 4 है और ऑक्सीजन की 3.5 है, क्लोरीन की अराउंड 3.1 है. दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज. ठीक है. अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी उस एटम की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हमने ये 3 हाइड्रोजन और इसके साथ फ्लोरीन लगा हुआ है और इधर OH लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है CH3 मिथेनॉल में. ठीक है. तो इट मींस दिस ऑक्सीजन इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन. यहाँ पे फ्लोरीन विल विथड्रॉ, फ्लोरीन भी अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को. ठीक है. सो दैट मींस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड प्रोटॉन दैट विल डिक्रीज. तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी. तो अगर डिक्रीज कर रही है so what will it lead to? So it will lead to de-shielding. ठीक है. So there will be de-shielding effect. ठीक है. अगर de-shielding हो रही है so then we will have a high delta values. Okay. So that is why this CH3F जो आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है, CH3F है. So this it will absorb at around 4.26. So we are having delta value. So 4.26 for methanol. So it will be 3.40. For this chloromethane, so it will be around 3.05. Okay. So these are the delta values. Okay. So delta values as the electronegativity decreases or as the electronegativity increases, so the delta value, the chemical shift will increase. क्यों इंक्रीज कर रही है? ड्यू टू द डी शील्डिंग इफेक्ट. यू गॉट दिस? ये समझ आ गया आपको कि नहीं? ठीक है. अगर नहीं है तो आप पूछ, तो आई मे एक्सप्लेन इट वंस अगेन. ठीक है. क्योंकि अगर अदरवाइज अगर आपको मैकेनिज्म समझ आ गई तो आई थिंक इट शुड बी ओके फॉर यू. आपका आई डोंट नो, मैंने लाइट जलाई है. अगर ये साफ, अगर बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है सो मे बी आई कैन, आई डोंट नो, सो इज इट बेटर और लाइट ऑन इज बेटर. अच्छा, ऑन में क्या ऑफ में? सर ऑन में दिख, प्लीज ऑन द लाइट. अच्छा, इसमें ज्यादा ठीक है. ठीक है. ठीक है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है? ठीक है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके न्यूक्लियस के अराउंड कम हो रही है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा, तो जो डायमैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो डायमैग्नेटिक फील्ड कम होगा. ठीक है. इट मींस कि जो हमारा अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो बी इफेक्टिव आएगा, दैट विल बी मोर एट द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस मोर बी इफेक्टिव. ठीक है. और उस वजह से देन दे विल हैविंग मोर यू कॉल इट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ठीक है. तो उनका जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी आएगा वो ज्यादा आएगा. अगर ज्यादा, इट मींस दे विल हैव मोर डेल्टा वैल्यूज. तो दिस इज electronegative effect. Then the second effect is hybridization. Okay, so what is the effect of hybridization? Okay. So hybridization, because so we are having sp3 hybridized, sp2 hybridized and sp hybridized carbon center. So and what will happen if, for example, if we are having CH3, so around this carbon, so CH, or if we are having only this double bond CH, so this double bond is attached here, so C double bond CH, and so let us suppose this is the proton CH, or if triple bond is there CH. Okay. So if in the vicinity of the carbon, if a tetrahedral carbon or sp3 hybridized carbon is attached, or if sp2 hybridized carbon is attached, or if sp hybridized carbon is there. ठीक है. एक तो उसके साथ अटैच्ड है
दूसरा, अगर वो कार्बन इटसेल्फ, अगर sp3, for example this one is sp3 hybridized, this carbon is sp2 hybridized when protein is attached to this one, and this carbon is अगर यहाँ पे आप ये मान लो कि यहाँ पे अगर सिर्फ CH है, ठीक है, तो दो तरह से कर देख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अभी चलो, अभी हम अटैच नहीं देखते, हम सीधा देख लेते हैं कि जो सीधा अटैच कौन सा कर रहा है। तो दिस इज sp3, this is sp2 and this one is sp hybridized carbon. So what is the impact of sp hybridization? ठीक है। So we know that more the s character जितना ज्यादा होता है, ठीक है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है। सो इन दैट वे, सो दिस sp hybridized carbon is having more s character, so it is more electronegative, ठीक है। सो इट मींस इट शुड हैव जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, सो डेल्टा वैल्यू शुड बी हाईएस्ट, तो इसके लिए हाईएस्ट आनी चाहिए, फिर देन सेकंड हाईएस्ट, एंड देन इसके लिए फिर लो आएगी डेल्टा वैल्यू जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। सो ये बट एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए sp3 की वैल्यू जो आ रही है वो 0 से लेके 1 के बीच में आ रही है, डेल्टा वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। सो लो डेल्टा वैल्यू इज ओके, ठीक है। बट फॉर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, when the carbon is sp2 hybridized, so this value it comes out to be between you call it 8.5 to 5.5, so this is the value range, delta values, okay. And for sp hybridized carbon, this value it lies between 2 to 3, so delta value is between 2 to 3, okay. Now this trend is not as per our expectations, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे अगर हम देख रहे हैं तो sp3 आ गया, तो sp2 की वैल्यू और थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी डेल्टा वैल्यू, लेकिन ये बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो sp है, सिंपल sp है, उसकी वैल्यू sp2 से ज्यादा आनी चाहिए, बट इट इज लेस देन द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, so why it is happening? So it is happening due to the we call it anisotropy, okay. So this is the term used as anisotropy, okay. So before anisotropy you have to understand isotropy, okay. So isotropy is actually the characteristics, okay, uniform distribution of that characteristics. For example, अगर आपके पास कोई प्योर सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, मे बी कोई आपके पास प्योर सब्सटेंस है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, इसकी डेंसिटी मेजर कर रहे हो, डेंसिटी तो इस डायरेक्शन में भी सेम है, इस यहाँ भी सेम, तो उसकी चारों तरफ जहां भी जाओगे आप वो प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी देख लो या डेंसिटी देख लो इसकी, ठीक है। सो इफ in 3 dimension, if that characteristics remain same, we call it that property as isotropy, okay, वो isotropy है, ठीक है, कि चारों डायरेक्शंस में या तीनों डायरेक्शंस में वो characteristics सेम रह रही है, ठीक है। या चाहे आप इनका अगर मेल्टिंग पॉइंट भी देखना है, आपने सैंपल यहाँ से ले लिया चाहे या इस तरफ से सैंपल ले लिया, तो जो प्योर सब्सटेंस होगा, कंपाउंड होगा, उसका हमेशा प्योर सब्सटेंस का वो सेम ही आएगा, मेल्टिंग पॉइंट सेम आएगा हमेशा, ठीक है। सो दिस इज आइसोट्रॉपी। अनिसोट्रॉपी इज, ठीक है, सो दिस चेंजेस विद द, इट चेंजेस, इट्स नॉट यूनिफॉर्म, इट चेंजेस विद द चेंज इन डायरेक्शंस। तो जब आप अलग अलग डायरेक्शंस में देखते हो, ठीक है, तो उस केसेस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है, ठीक है। एंड समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग इन केस ऑफ, ठीक है, व्हेन वी आर हैविंग ए पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉड. So when we are dealing with a pi electron cloud, okay, so in that case, so pi electron cloud or current,
So whenever you are having a pi electron system, ठीक है, फॉर एग्जांपल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आ गया, ठीक है, या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आ गया, ठीक है, और हमारे पास ये बेंजीन रिंग भी है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग का आपने देखा होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे above and below the plane of the ring, ठीक है। So these are the pi electron cloud, ठीक है, and in the presence of a magnetic field, जब ये magnetic field में आएंगे, ठीक है, जब हम applied magnetic field करेंगे, ठीक है, so these pi electron, so they spins, we call it pi electron cloud or this ring currents. So they produce at least in case of aromatic rings, so these produce the ring currents, ठीक है। अब रिंग करंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, ठीक है। उसी तरह से इसका भी जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इट इज प्रोड्यूसिंग रिंग करंट्स, ठीक है। तो रिंग करंट्स की वजह से, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्पिनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ दीज रिंग्स, ठीक है। तो ये यहां से, तो इस तरह से ये रिंग करंट्स ये प्रोड्यूस, तो आप ऐसे मान के चलो कि ये रिंग्स है, ये रिंग है आपकी, ठीक है। तो इसके बीच से, तो ऐसे ऐसे जो चारों तरफ आप जो आपकी हेक्सागोनल रिंग आ गई, ठीक है, तो उसके चारों तरफ ये जो रिंग करंट्स है, जो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से घूम रहा है, और इसकी वजह से वी आर हैविंग दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, and this direction of this induced magnetic field is something like this one, ठीक है। तो रिंग के अंदर ये ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, और यहाँ पे ये बाहर ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से, सो यू कैन से कि ये रिंग, ये अगर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो ये रिंग के अंदर जा रहा है और ये बाहर है, ठीक है। तो ये बाहर है और ये रिंग के अंदर ये डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से यू आर हैविंग दीज रिंग करंट्स, ये अंदर की तरफ है और यहाँ से घूम के ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, ठीक है। सो दीज आर द रिंग करंट्स, रिंग के अंदर इनकी डायरेक्शन, रिंग करंट्स की ये डायरेक्शन आ रही है, और रिंग के बाहर आप केयरफुली देखोगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपने बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर देखी होगी, ठीक है। सो दिस इज बेंजीन रिंग, और उसमें जो प्रोटॉन होते हैं, here in the same plane lying outside the ring, ठीक है। और ये हमारा ये आ गया वो जो बताया जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखाएंगे वो, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम मे बी दो तरह से दिखाएंगे इसको, तो ये इसकी डायरेक्शन आ रही है यहाँ पे, ये नीचे की तरफ है, और यहाँ पर जो प्रोटॉन है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। नाउ यू सी केयरफुली, सो दिस इज द डायरेक्शन, ये रिंग के अंदर डायरेक्शन आ रही है, और दिस इज ये रिंग के बाहर डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। So this direction, so we can see, so if this is the applied magnetic field, ये strength applied magnetic field है, magnetic field strength, और ये उसकी strength है, ठीक है। तो इस केस में ये फील्ड तो यहाँ पे it is behaving as diamagnetic, क्योंकि ये अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ है, जो हमने एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन है ये, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, अगर आप रिंग के बीच में देखोगे, सो द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज अपोजिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, सो वी कॉल इट डायमैग्नेटिक शील्डिंग, सो दिस इज डायमैग्नेटिक शील्डिंग, this is diamagnetic shielding, okay. But here, so in this case,
तो ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे, ये प्रोटॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप रिंग करंट को देखोगे, सो दिस रिंग करंट इज इन अलाइनमेंट विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाइड है, ठीक है। सो वी कॉल इट हियर, इट इज बिहेविंग एज ए पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मींस इट इज सपोर्टिंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब अपोज कर रहा है, तो उस केस में जो बी इफेक्टिव है, तो बी इफेक्टिव इज इक्वल टू अप्लाइड माइनस इलेक्ट्रॉन, जो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का इंड्यूस्ड करंट है, तो उतना माइनस हो जाएगा जितना अपोज कर रहा है। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर हैविंग दीज प्रोटॉन, दे आर लाइंग इन द ये पैरामैग्नेटिक रीजन, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, उस रीजन में लाई कर रहे हैं, तो उस केस में तो दिस फील्ड इट विल रीइंफोर्स, वो उसको सपोर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। सो बी इफेक्टिव विल बी मोर देन द अप्लाइड फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड आ रहा है वो भी सपोर्ट कर रहा है अप्लाइड फील्ड को, तो उस केस में ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो इस केस में इट मींस बी इफेक्टिव, अगेन वो रिलेशन जो मैं बोलता हूँ बार बार कि ये रिलेशन हमारा साथ में चलेगा, सो इट मींस सो दिस न्यू, तो बी इफेक्टिव, ये बी इफेक्टिव आ गया, सो दिस न्यू विल बी मोर, अगर न्यू मोर है सो इट मींस डेल्टा वैल्यू विल बी हाई, हाई मींस सो इट इज डी शील्डेड, so in this case this lies in the d shielded region, so we can also call this is a shielded region, this one is a d shielded region, or also call this is a diamagnetic region, this is paramagnetic region, ठीक है। तो यहाँ पे डी शील्डिंग कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इस केस में इट इज शील्डेड, ठीक है। सो इन एडिशन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट है, उसके एडिशन में सो वी आर हैविंग दिस अनआइसोट्रोपी। अब यहाँ पे इसलिए हम इसको अनआइसोट्रोपिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस रीजन में देखेंगे तो ये जो रीजन आ रहा है, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज, ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक ये रिंग आ गई, ठीक है। तो इस रीजन में हमारा जो फील्ड है वो अपोज कर रहा है, ठीक है, इस रीजन में। बट एट द सेम टाइम जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, तो इस रीजन में जो बाहर वाला रीजन है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे सारा अपोज कर रहा है, बट बाहर वाला जो रीजन है, तो ये वाला रीजन यहाँ पे, तो दिस वन विल रीइंफोर्स, वो उसको जो हमारा अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ है वो उसको रीइंफोर्स कर रहा है, और इस रीजन में वो डायमैग्नेटिक है उसको कम कर रहा है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से अगर अंदर की तरफ जा रहे हैं सो वी आर हैविंग यहाँ इस केस में जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक, तो इट बिकम्स ए डायमैग्नेटिक रीजन्स, और बाहर की तरफ जा रहे हैं देन इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक रीजन्स, और इट बिकम्स यहाँ पे शील्डेड रीजन बन रहा है, शील्डेड रीजन है, और इस तरफ जा रहे हैं देन इट इज बिकमिंग ए डी शील्डेड रीजन, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो वी आर हैविंग आइदर शील्डिंग इफेक्ट और डी शील्डिंग इफेक्ट, सो दैट इज व्हाई, सो दिस जो बिहेवियर है, ठीक है, वो जो करेक्टरिस्टिक्स है, ये वाली करेक्टरिस्टिक्स, इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। सो ये इस पे डिपेंड कर रही है, तो ये तो आ गया एरोमेटिक रीजन का। इसी तरह से वी आर हैविंग ठीक है, तो ये वी आर हैविंग डबल बॉन्ड, सो इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर, तो इस केस में भी जो रिंग करंट्स है, तो ये रिंग करंट्स ये इस तरह से चलेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे प्रोटॉन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो इस तरह से कर रहा है, सो ये दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक रिंग करंट्स, ठीक है। सो इस केस में ये यहाँ पे इस रीजन में, सो इट इज बिहेविंग एज अ डायमैग्नेटिक, तो ये डायमैग्नेटिक रीजन है, बट यहाँ पे जो प्रोटॉन है तो इस केस में
इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज अपोजिंग द अप्लाइड फील्ड व्हाइल दिस वन इज रीइंफोर्सिंग द अप्लाइड फील्ड। तो इस केस में भी हमारी जो डायरेक्शंस है, ठीक है, सो वी कैन से ये जो रीजन है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, तो ये ठीक है। सो दिस वन इज, यहाँ पे ये रीइंफोर्स हो रहा है, वी कॉल इट पॉजिटिव रीजन, और इस केस में ये डीशील्डेड रीजन है। तो ये सॉरी, दिस वन इज शील्डेड रीजन, ये शील्डेड है, ये शील्डेड रीजन, तो यहाँ पे कम होगा डेल्टा वैल्यू, और इस केस में दिस इज ए डीशील्डेड रीजन, डीशील्डेड रीजन, तो यहाँ पे इस केस में डेल्टा वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है। सो मोर डेल्टा वैल्यू इज हाई, ठीक है, और इस रीजन में कम आएगी। इस तरह से कार्बोनाइल में, ठीक है, जो कार्बन आपका कार्बोनाइल है ये वाला, ठीक है, तो उस केस में भी इस कार्बन के, इसके ऑक्सीजन के अराउंड ये जो रीजन है, तो दिस रीजन, तो इस रीजन में ये यहाँ पे रीइंफोर्सिंग होगी, पॉजिटिव रीजन आएगा, ये डीशील्डेड रीजन आएगा, और ये वाला रीजन, दिस वन इज शील्डेड रीजन, इसमें भी अलग अलग डायरेक्शंस में। तो दिस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है वो अलग अलग डायरेक्शंस में बिहेव करेगा, अलग से बिहेव करेगा। सो वी आर हैविंग शील्डेड रीजन एंड डीशील्डेड रीजन। तो जो कार्बोनाइल में, ठीक है, कार्बोनाइल में जो हमारा प्रोटॉन होता है, ये वाला प्रोटॉन, ठीक है, तो दिस लाइज इन द डीशील्डेड रीजन, ये डीशील्डेड रीजन में होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू पता कितनी आती है, ये 9 और 10 के बीच में, जो डेल्टा वैल्यू, हाईली डीशील्डेड रीजन, दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 9 and 10 एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी आप आगे देखोगे, डेल्टा वैल्यू को हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको सिंगल पीक मिल रही है, सिंगल प्रोटॉन मिल रहा है 9 और 10 में, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट एक गारंटी होती है कि देयर इज ए CHO ग्रुप प्रेजेंट, कि आपके जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इफ यू आर गेटिंग ए शार्प पीक बिटवीन 9 and 10 फॉर ए सिंगल प्रोटॉन, ठीक है, वो मैं आपको स्पेक्ट्रा भी दिखाऊंगा कभी। so this is anisotropy, anisotropy, and due to this anisotropy, so that's why we are not having the same trend in the chemical shift value of sp3 sp2 and now comes to the sp, ठीक है। अगर ये है शील्डिंग डीशील्डिंग है और अगर एनाइसोट्रॉपी है, देन वाई, ठीक है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के केस में, तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमारे पास फिर वो क्यों नहीं आ रहा है, तब उसकी वैल्यू तो और ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बट दैट अगेन, सो एवरीथिंग दैट डिपेंड्स अपॉन द in which region this proton are lying, ठीक है। सो वो डिसाइड करता है कि whether they are lying in the shielded region or de-shielded region। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखा, तो वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अब जो करंट्स है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसके जो ये करंट्स है, ठीक है, तो दे आर मूविंग लाइक दिस वन। So this is something like this one. So you are having now what is happening? So this is the direction of movement of this induced field. तो ये यहाँ पे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये मूव कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे घूमते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है भाई, और ये इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे, और ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। अब नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन है। एंड व्हेन यू सी द करंट्स, दीज करंट्स, ठीक है, सो दिस हाइड्रोजन इज लाइंग, दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर, जो CH है
वो लीनियर है. So this hydrogen is lying here, and here you can see जो मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक नोड का, so that field is opposing the applied field. जो हमने उसको एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है उसको यहाँ पे अपोज कर रहा है. सो ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन, जो स्ट्रक्चर है एसिटाइलिन की, तो स्ट्रक्चर इस तरह की है. अगर इस रीजन में कहीं पे प्रोटॉन लाई करता, मान लो यहाँ पे लाई करता, ठीक है, तो यहाँ पे तो रीइंफोर्समेंट होनी थी इस रीजन में, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज लाइंग इन द शील्डेड रीजन. तो शील्डेड रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है. सो ड्यू टू दिस प्रोटॉन अगर शील्डेड रीजन में आ रहा है तो शील्डेड के केस में इसकी वैल्यू तो 0 और 1 sp3 की तरह आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है. बट बिकॉज दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, इसका s करैक्टर भी है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे डीशील्डिंग भी कर रहा है प्रोटॉन के अराउंड. सो दैट इज व्हाई दिस डेल्टा वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 2 to 3. तो जो आपके पास एसिटाइलिनिक प्रोटॉन आते हैं, ठीक है, वो प्रोटॉन आपको इस रेंज में मिलेंगे. So this is the range. Okay. So this is anisotropic. Anisotropic की वजह से that is why the hybridizations and is not playing that much important role. तो उसकी वजह से आपके जो भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच्ड प्रोटॉन है, डायरेक्टली अटैच्ड है, इस कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, so it is lying between this one is lying between 8 to 5.5, इस रेंज में आएगा ये. और जो आपके एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग के प्रोटॉन है, so that is again lying between 8.5 to 6.5. so this is the range of aromatic protons. जितने भी एरोमेटिक प्रोटॉन्स आएंगे आपके, ठीक है, साइक्लिक रिंग में बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है, ये इस रेंज में आएंगे जो भी प्रोटॉन्स आ रहे हैं. और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ है वो 8 to 5.5 के बीच में आएंगे. डेल्टा, दीज आर द डेल्टा वैल्यूज, ठीक है, डेल्टा वैल्यूज. और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, so in this case, so this is lying between 2 to 3. Okay, so these are the approximate range, probable range of these protons. Okay, then the next one is hydrogen bonding. So what is the impact of hydrogen bonding? Okay, so for example, we are having a CH3O and H. Okay, so ये methanol है, so it can form hydrogen bond with the another methanol. Okay, so this is the hydrogen bond form. Okay, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के बाद what will happen to the electron density around this hydrogen? इस हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या होगा, बढ़ेगी कि कम होगी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने के बाद? एनीबॉडी? Decrease. So Khushi, yeah, it's so this electron density will decrease. Okay, so that's good, Khushi. So electron density will decrease. So what does it means? What will happen to the delta value? Delta value low आएगी कि high? अगर electron density decrease हो रही है, so what is it? High. So it will be, so delta value will be high. Okay, because अगर electron density कम हो रही है, we call it de-shielding. इसमें de-shielding हो रही है, तो ये डेल्टा वैल्यू हाई आएगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज आल्सो प्रोटॉन. दिस प्रोटॉन इज ऑलरेडी अटैच्ड टू द ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पहले से अटैच्ड है, इसमें पहले से डी-शील्डिंग हो रही है, उसके बाद एक और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, सो दैट इज अगेन विथड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द हाइड्रोजन, ठीक है. तो उसकी वजह से ये जो डेल्टा वैल्यू है वो बहुत हाई. तो जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जैसे अल्कोहल्स में 2 से लेके 4 के बीच में डेल्टा वैल्यूज आती है अगर सिंपल एलिफेटिक अल्कोहल्स है. अगर एरोमेटिक अल्कोहल्स है, फिनोल्स है, उसमें जो प्रोटॉन है एरोमेटिक प्रोटॉन है, तो ये एरोमेटिक OH, तो इसकी वैल्यू
बिकॉज ये जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वेरी करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसमें कोई फिक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, जैसे कभी 8.5 पे आ रहा है, कभी मे बी 7.5 पे आ जाए, ठीक है। सो दिस वैल्यू इट वेरीज बिटवीन एरोमेटिक OH की वैल्यू, तो फ्रॉम 8 to 8 के बीच में आती है। और उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आल्सो हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इनकी वैल्यू काफी ऊपर आती है, इनकी वैल्यू अराउंड डेल्टा 10 के आसपास आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट डिक्रीजेस द electron density, so it decreases the electron density around hydrogen atom, and that will cause de-shielding, and de-shielding that will give rise to high delta value, तो इसका ज्यादा डेल्टा वैल्यू आएगा। So this is shielding, de-shielding, and another factors which affects the chemical shift values, जो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज आ रही है, तो वो अलग अलग फैक्टर्स ये डिफाइन कर रहे हैं, तो उस वजह से आ रहा है। अब हमें, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं जरूरत है इनको रिमेम्बर करने की, बट वी शुड हैव द रफ आइडिया, ठीक है। रफली हमें ये पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट कितनी वैल्यू आती है, ठीक है, कि ये जो प्रोटॉन है कि ऑलमोस्ट किस रेंज में आने चाहिए। तो वी आर हैविंग दिस स्केल, ये डेल्टा वैल्यू स्केल है, तो ये आपके पास यहाँ टेबल भी दिया हुआ है इस बुक में। सो डाटा रेंज फ्रॉम 0 to, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये डेल्टा स्केल्स है। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो इस 0 से 1 के बीच में, ठीक है। सो हियर यू आर हैविंग एलिफेटिक, जो आपके एलिफेटिक प्रोटॉन है, ठीक है, CH2 ये लॉन्ग चेन्स है, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बीच में ये ग्रुप एलिफेटिक ग्रुप्स आएंगे, ठीक है। 1 और 2 के बीच में, जो 1 और 2 के बीच में वैल्यू आती है, इट में भी अगर आपके जो एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है चेन, ठीक है, जैसे CH3 अटैच्ड है टोलिन में 2 के आसपास आता है ये, ठीक है। उसी तरह से जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा, तो ये रेंज इनकी इस रेंज में आते हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक है। ये 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में एक तो हमने देख लिया कि एसिटाइलिनिक प्रोटॉन आते हैं, CH एक ही आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर N के साथ कोई लगा हुआ है, N के साथ कोई नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो वो 2 और 3 के बीच में आएंगे वो, ठीक है, ये वैल्यू। उसी तरह से ये वाले प्रोटॉन्स 3 और 4 के बीच में आपके अगर OCH3, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, 3 और 4 OCH3 या आपका OCH2 CH3 है, तो ये वाला जो CH2 है ये भी अराउंड 4.2 के आसपास आता है ये, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। 4 और 5 के बीच में जनरली वी आर हैविंग बेंजाइलिक, तो जैसे ये CH2 OH है, ठीक है। तो ये जो CH2 है ये 4 और 5 के बीच में, इस रेंज में आएगा ये 4 और 5 के बीच में, ठीक है। और 5 और 6 की रेंज में, 5 और 6 के बीच में जो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच्ड है, ठीक है, तो ये में भी ये इस रेंज में यहाँ पे आते हैं, या ये फिर बहुत वेरी करेगी रेंज, ठीक है। तो इसमें जितने भी एलिफेटिक प्रोटॉन्स है आपके एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है, तो ये वाले प्रोटॉन, तो ये इस रेंज में लाई करेंगे सारे के सारे, ठीक है। उसी तरह से ये 2 और 3 के बीच में आपके पास ये वाला OH भी आता है, अगर एलिफेटिक OH है, ठीक है, ये एलिफेटिक रिंग के साथ लगा हुआ है, तो इस रेंज में 2 और 3 के बीच में आ जाता है ये जितने एरोमेटिक है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं ये प्रोटॉन, ये सारे इस रीजन में आएंगे 8 से लेके 6 से लेके 8.5 के बीच में, ठीक है।
और ये वाला रीजन्स ये में भी 8.5 तक, 9 और ये दिस रीजन इज फॉर CHO 9.5 और 9 के बीच में, जो मैंने अभी बताया आपको स्ट्रॉन्ग डीशील्डिंग की वजह से। तो दिस CHO इज लाइंग हियर इन दिस रीजन, CHO। और 10 और 11 के बीच में यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के OH है, ठीक है, और हाईली डीशील्डेड आपके जैसे फ्लेवोनोन्स में, ठीक है, ये OH आ गया, ये OH ग्रुप है, ठीक है। सो ये इस तरह के जो हाईली डीशील्डेड है, तो वो COH कार्बोक्सिलिक एसिड्स या हाईली लेबाइल प्रोटॉन्स है, so they are lying in this region, इस रीजन के बीच में रहेगा। सो दिस इज असाइनमेंट फॉर यू पीपल। आपकी जो बुक है आपके पास है, देखिए इसमें अपेंडिक्स A8 है, अपेंडिक्स 2, तो इसमें आपको रेंजेस दी हुई है सारी, ये कौन से प्रोटॉन किस रेंज में आ रहे हैं, ये रेंज दी हुई है। सर पाविया की बुक में। हाँ, पाविया की बुक में जो आपके साथ शेयर किया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो अप्रोक्सीमेट प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट रेंजेस ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है सारा इस टेबल में, ठीक है, ये टेबल है, ये अपेंडिक्स नोट कर लीजिए चाहे, अपेंडिक्स 2 ये टेबल, ये इसका आप असाइनमेंट भी बना लीजिए इसके, ठीक है, कि कौन कौन से जो प्रोटॉन है, जो यहाँ पे देखोगे ना आप, जो बोल्ड किया होगा, और भी दिखेंगे आपको, लेकिन जो बोल्ड किया है इसमें, वो वाले प्रोटॉन की रेंज दिखेगी आपको इसमें, इस रीजन में। तो CH3 है या CH2, दोनों CH3 की तरफ से घिरा हुआ है, तो वो कहाँ पे आएगा, या अगर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो वाला प्रोटॉन कहाँ पे आएगा। तो ये ऑल दीज आर नॉट एग्जैक्टली बट दीज आर अप्रोक्सीमेट, आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ऑक्सीजन लगाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, शील्डिंग होगी, डीशील्डिंग होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या होगा उसका, वो प्रोटॉन किस रेंज में आना चाहिए, ठीक है। सो दैट क्योंकि अगर आपको ये वैल्यूज पता होंगी, देन इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारे पास जो जब हम NMR एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है, तो वो तो पीक्स आएंगी हमारे पास, ये पीक्स आएगी, जैसे ये टेबल बना हुआ है, तो ये हमारे पास ये पीक आ रही है, जैसे ये पीक आ गई, ठीक है, ये ट्रिपलेट आ गया, ठीक है, ये मे बी एक क्वाड्रेट आ गया, तो ये यहाँ पे ये डेल्टा वैल्यू दी हुई है, ये वाली। तो अब ये वाली आ रहा है 4.5 पे आ रहा है क्वाड्रेट, ठीक है, तो 4.5 पे क्या आ सकता है, 4.5 पे इट मींस कि डीशील्डिंग किसकी वजह से होगी, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम चाहिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन हो सकता है, या तो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अब क्योंकि 4 के आसपास आ रहा है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट मींस कि ऑक्सीजन अटैच्ड है वहां पे। तो ये आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पता होंगी कि डेल्टा वैल्यू किस रेंज में कौन सा प्रोटॉन आता है, ठीक है। सो इसको पढ़िए, ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देन वी विल मूव ऑन टू, हम उसमें देखेंगे इक्विवेलेंस, देखेंगे इक्विवेलेंस प्रोटॉन, और इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बाद देन विल डू सम एग्जांपल्स आपका कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ठीक है। और सिमिलरली फिर इसका C13 पे भी ऐसे ही है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू और रेंज आएगी इसकी फिर, ठीक है। ये है अपेंडिक्स 3 में भी सेम ही दिया हुआ है आपका, इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच करके लगा दिए कि अच्छा ये कौन से वाला ग्रुप प्रोटॉन कहाँ पे आ रहा है। तो अपेंडिक्स 2 है, अपेंडिक्स 3 है, तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स के स्ट्रक्चर बना के कंपाउंड की कि कौन से वाला प्रोटॉन कहाँ पे दिखेगा आपको, ये दिया हुआ डिटेल में। तो ठीक है, इसको बना लो सारा ये, एंड देन यू पीपल विल राइज, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये जब हम
प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फिर ये आपको इजी लगेगा। सर हम्म। सर हमें ये डेल्टा का प्लॉट करना है ना, मतलब डेटा देख के, यही असाइनमेंट है। आप, हाँ, आप जरूरी नहीं जैसे इन्होंने टेबल दिया उसी फॉर्मेट में करना है आपने, आप अपने हिसाब से भी कि जैसे डेल्टा वैल्यू 0 to 1 है तो 0 to 1 में आप नीचे लिख सकते हो कि कौन कौन से प्रोटॉन आ सकते हैं, किस तरह के प्रोटॉन आ सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू हाईलाइट दोज प्रोटॉन्स, या 2 to 3 के बीच में डेल्टा वैल्यू 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में कौन कौन से प्रोटॉन आ सकते हैं, ठीक है, वो आपने हाईलाइट करना है, वो थोड़ा सा आइडिया लेना है आपने। ठीक है सर। यू गॉट इट? यस सर। और किसी का कोई डाउट हो इसमें, कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप ये समझ गए, ठीक है, तो देन इट विल बी इजी फॉर यू पीपल। रिपीट हाइब्रिडाइजेशन, एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रोपिक। नहीं, मैं समझा नहीं भाविक, ये तो मेरा पूरे का पूरा लेक्चर है ये, आपको एग्जैक्टली क्या पता नहीं चला भाविक? व्हाट एग्जैक्टली यू डिडंट अंडरस्टूड? और कोई क्वेश्चन हो किसी का कोई?